بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے سبق نمبر 3 کا آغاز کریں گے جو کہ رحمت للعالمین ہے، اور آج ہم اس سبق کے پہلے حصے کو دیکھیں گے جس میں ہم کچھ قواعد یعنی گرامر کے حصے کو پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے حسب معمول آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم ایک ہی SLO کو پڑھیں گے جو کہ ہے زمانے کے لحاظ سے تمام جملے بنانا اور ایک سے دوسرے زمانوں میں تبدیل کرنا سیکھ سکے، یعنی جملہ اگر کسی زمانے کا ہے تو اس زمانے سے دوسرے زمانے میں جملے کو لے جانا، اس کا طریقہ آج ہم سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، گرامر کے اس حصے میں، قواعد کے اس حصے میں ہم پہلے زمانے کو دیکھ لیتے ہیں۔ زمانے کل کتنے ہیں؟ 3۔ کتنے زمانے ہیں؟ 3۔ پہلا ہے ماضی، دوسرا ہے حال ہے سے، اور تیسرا ہے مستقبل۔ تیسرا کیا ہے؟ مستقبل۔ یہ 3 زمانے ہمارے سامنے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو یاد رکھیں، ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو۔ کیسے کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں، یعنی جو زمانہ گزر گیا، یعنی کل والا دن، پرسوں والا دن، اس سے پہلے والا دن، پچھلے ہفتے والا دن، 2 ہفتے پہلے والا دن، 1 مہینے پہلے والا، سال پہلے والا، گویا کہ ابھی اس زمانے سے پہلے جو بھی زمانہ ہے گزر چکا ہے وہ ہے ماضی۔ وہ کیا ہے؟ ماضی۔ ماضی کے جملوں کی پہچان کس طرح ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ ماضی کے جملوں کے آخر میں تھا، تھے، تھی، تھیں لگتا ہے۔ تو بچوں، آسان طریقہ ماضی کے جملوں کی پہچان کا وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی جملے کے آخر میں یہ الفاظ تھا، تھے، تھی اور تھیں آپ کو نظر آ جائے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ ماضی کا جملہ ہے۔ ٹھیک؟ اس کے بعد چلتے ہیں حال کی طرف۔ حال کہتے ہیں موجودہ زمانے کو، یعنی جس وقت میں ہم بات کر رہے ہیں، آپ یہ سبق سن رہے ہیں اور میں یہ سبق سنا رہا ہوں، یہ حال کا زمانہ ہے۔ تو حال کسے کہتے ہیں؟ موجودہ زمانے کو۔ اور موجودہ زمانہ یعنی حال کے جملوں کے آخر میں ہیں، ہے اور ہوں کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم سبق پڑھ رہے ہیں، بچہ سبق سن رہا ہے، اور میں سبق پڑھا رہا ہوں۔ تو اب دیکھیں، جیسے ہی یہ جملے آپ سنیں گے آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جائے گی کہ یہ حال کے زمانے کی یعنی موجودہ زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب چلتے ہیں مستقبل کی جانب۔ یاد رکھیں کہ مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ آنے والے زمانے کو۔ اور مستقبل کے جملوں کے آخر میں کیا استعمال ہوگا؟ گا، گی، گے وغیرہ وغیرہ۔ جیسے میں کہتا ہوں آپ گھر کا کام لکھیں گے، میں کل نیا سبق پڑھاؤں گا، یا عائشہ کل کا سبق یاد کرے گی۔ اب کروں گا، کرے گی اور کریں گے، یہ مستقبل کے جملے ہیں، یعنی آنے والے زمانے کو بتاتے ہیں۔ تو یہ ہیں 3 زمانے، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی کی پہچان ہے تھا، تھی، تھے اور تھیں، اور حال کے جملوں کی پہچان ہوگی ہیں، ہے اور ہوں سے، اور مستقبل کے جملوں کے آخر میں ہمیشہ گا، گی اور گے ہوگا۔ اب یہ فرق کیوں ہے؟ آپ کے سامنے ایک چارٹ بنا ہوا ہے اور اس میں آپ کو کچھ سمجھایا گیا ہے
चले इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी फेल, जैसे मैं कहता हूं खेलना, क्या खेलना एक फेल है, एक काम है। ये खेलने का फेल अगर फेल माजी में हो यानी गुजरे हुए जमाने में हो तो हम कहेंगे हसन खेल रहा था। अब इसके आखिर में क्या आ गया? था। और जैसे ही था आपने सुन लिया, हमने पढ़ा था कि फेल माजी की पहचान क्या है? था। तो आपके जहन में आ जाएगा कि चूंकि इस जुमले के आखिर में था का इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये फेल माजी है और ये गुजरे हुए जमाने की बात हो रही है। इसी तरह खेलने का फेल अगर हाल में हो यानी मौजूदा जमाने में हो तो इसका जुमला बनेगा हसन खेल रहा है। हसन खेल रहा है। अब इसके आखिर में क्या आ गया? है। और हमने ये पढ़ा था कि जिस जुमले के आखिर में है का इस्तेमाल हो वो फेल हाल यानी मौजूदा जमाने पर दलालत करता है। इसी तरह अगर ये फेल मुस्तकबिल में हो और आने वाले जमाने में हो तो जुमला होगा हसन खेलेगा, आने वाले जमाने में। और हमें हसन खेलेगा इस जुमले से कैसे मालूम हुआ कि ये मुस्तकबिल का है? हमें मालूम हुआ गा से। क्यों? गा, गी और गे ये फेले मुस्तकबिल यानी आने वाले जमाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसको कहते हैं फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। अब हम कुछ सवालात के जरिए से फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल को मजीद अच्छी तरह समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या है? हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं जैसे हमेशा होता है। इनमें सिर्फ एक जवाब दुरुस्त है, सिर्फ एक जवाब। आप दुरुस्त जवाब के दायरे को काले या नीले पेन से भरें। अब पहला सवाल क्या है? दुरुस्त इराब वाला लफ्ज है गुमराही, गिमराही, गमराही या गुमेराही। ये तो हमारा सवाल जमाने से मुतालिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको हल करते हैं। वो है गुमराही। क्या है? गुमराही। ये है दुरुस्त जवाब। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ जो हमारा जमाने के मुतालिक है और हमारा असल सबक है। सवाल क्या है? अमजद आता है। अमजद आता है। अब देखें है किसकी अलामत है? फेल हाल की। लिहाजा सवाल तो आपके लिए आसान हो गया। जमाने के लिहाज से ये जुमला है फेल हाल का, माजी का, मुस्तकबिल का या माजी करीब का? जी है। किस लिए आता है? हाल। तो आपको आसानी से मालूम हो जाएगा कि ये इसका दुरुस्त जवाब है। इसी तरह सवाल नंबर 3 बहुत दिलचस्प है। सवाल नंबर 3 क्या है? हामिद आया है। ये तो फेल हाल है, हमें है से मालूम हो चुका है। इस फिक्रे का फेल मुस्तकबिल होगा यानी हामिद आया है, हमने इसको फेल मुस्तकबिल में तब्दील करना है। तो हम आसानी से क्या करेंगे? इस है को तब्दील कर लेंगे गा से। तो अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। पहला है हामिद आया था से मालूम हो गया कि ये फेल मुस्तकबिल नहीं हो सकता, ये तो फेल माजी है। दूसरा है हामिद आ रहा है, ये भी फेल मुस्तकबिल नहीं हो सकता इसलिए कि है का इस्तेमाल है और है आता है फेल हाल के लिए। अगला है हामिद आएगा, हामिद आएगा ये फेल मुस्तकबिल है। और अगला है हामिद आ रहा होगा। अब ये दोनों फेल मुस्तकबिल के हैं, हामिद आएगा और हामिद आ रहा होगा। लेकिन इस जुमले के मुताबिक ये जुमला ज्यादा बेहतर है, लिहाजा हमारा दुरुस्त जवाब ये हो जाएगा। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है? रजिया सबक याद करेगी। करेगी ये किसकी निशानी है? शाबाश, फेल मुस्तकबिल की। इस फिक्रे का फेल माजी होगा यानी इस फेल मुस्तकबिल को हमने फेल माजी में तब्दील करना है। और हमारे पास कौन कौन से हैं? रजिया सबक याद कर रही है, ये तो माजी नहीं हो सकता, इसमें है का इस्तेमाल है।
रजिया ने सबक याद कर लिया होगा, ये भी फेल माजी नहीं है। रजिया सबक याद करेगी, ये भी फेल माजी नहीं है, गी का इस्तेमाल हुआ। रजिया सबक याद कर रही थी, ये है फेल माजी, क्योंकि हमें फेल माजी की अलामत थी इसमें नजर आ चुका है। और सवाल नंबर 5 क्या है? गुजरे हुए जमाने को कहते हैं, हमने 3 जमाने पढ़े, फेल माजी, हाल और मुस्तकबिल। गुजरे हुए जमाने को क्या कहते हैं? फेल माजी। ये है इसका दुरुस्त जवाब। तो बच्चों देखा आपने फेल माजी, हाल और फेल मुस्तकबिल की इन जुमलों के जरिए पहचान कर ली और जुमलों को तब्दील करने का तरीका भी सीख लिया, यानी जो हमें SLO में बताया गया था। अब हम चलते हैं घर के काम की तरफ और देखते हैं कि हमें क्या घर का काम दिया गया है। तो आपने अपने घर का काम देखना है अपने समर पैक में, और वो क्या है? सवाल क्या है? किताब से ज़माना माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में समझ कर पढ़ने के बाद इस सवाल के जवाबात तहरीर करें। और हमने आज के सबक में माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में सीख लिया है, और यहाँ भी हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं और आपने सोच समझ कर इन 4 में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। और सिर्फ दुरुस्त जवाब का इंतखाब नहीं करना, बल्कि यहाँ पर जो 2 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पर आपने उस जवाब के इंतखाब की वजह भी जरूर बतानी है। मसलन पहला सवाल क्या है? अम्मी ने सवैयां बनाई, अम्मी ने सवैयां बनाई, फेल माजी का ज़माना हाल का जुमला है। इस फेल माजी को आपने फेल हाल में तब्दील करना है। इनमें से कोई एक दुरुस्त जवाब आप मुंतखब करके यहाँ पर उस जवाब के मुंतखब करने की वजह भी ज़रूर लिखनी है। तो सवाल नंबर 1 ये है, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5। ये है आपके समर पैक में से आपके घर का काम।